مانگ رہے ہیں اداروں سے کہ ہمیں 1.5 سال کی گارنٹی دی جائے. ساری کی ساری اپوزیشن ایک ووٹ پہ زندہ ہے. پچھلی حکومت میں وکیلوں کو اس طرح سے اگنور کیا گیا جس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور مجھے اپنی غلطیاں بھی ہمیں ماننی چاہیے. میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، ہماری کوئی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو انہیں معاف کریے گا. وزیر اعظم نے اپنی مشاورت مکمل کر لی ہے اور عنقریب وہ قوم کو اعتماد میں لیں گے. اتحادی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے اور ہم پاکستان کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے جو بھی معیشت کو درست کرنے والے فیصلے ہیں وہ ضرور اٹھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم. میں ہوں طارق محمود. ایک اور بڑی آج سیاسی پیش رفت ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد 14 اراکین کے دستخط کے ساتھ آج جمع کرا دی گئی ہے. اور تحریک عدم اعتماد جمع کرانے والوں میں جو پیش تھے وہ یار محمد رین صاحب اور جام کمال صاحب تھے. یار محمد رین صاحب کہتے ہیں کہ جی اتنی بری پرفارمنس ہے قدوس بزنجو صاحب کی اور حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ اب ہمیں جام کمال صاحب فرشتہ نظر آنے لگے ہیں. ساتھ ساتھ جام کمال صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم کے لیے اپنے وعدے وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے. یعنی ان کا اشارہ یہ ہے کہ جس وقت مرکز میں حکومت ٹاپل ہو رہی تھی تو شاید جام کمال صاحب، کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے جو 4 اراکین قومی اسمبلی تھے انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن اور موجودہ حکومت کا ساتھ دیا تھا، وہ جو ہے اب وہ اپنے وعدے وفا کرے تو شاید جام کمال صاحب کی اس وقت کوئی کمٹمنٹ بھی ہوئی ہو کہ قدوس بزنجو صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد ہوگی تو پی ڈی ایم کی جماعتیں یعنی جمعیت علماء اسلام اور بلوچستان نیشنل پارٹی یعنی اختر مینگل صاحب کی جو پارٹی ہے وہ سپورٹ کریں گے اس کے اندر. اب یہ بات کس حد تک درست ہے اور کتنی سپورٹ ہوتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا یہ اس کا پراپر ہوم ورک کر کے یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا وہاں پہ اب کچھ اور معاملات بڑھنے جاتے ہیں. کیونکہ قدوس بزنجو صاحب کی کچھ روز کا مولانا واسع صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور پھر اسی طریقے سے جو بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر حکومت تبدیل ہوگی تو پھر وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپوزیشن سے ہونا چاہیے یا جمعیت علماء اسلام سے یا مینگل صاحب کی پارٹی سے. تو یہ بڑی اب انٹرسٹنگ صورتحال ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے. لیکن بار بار بلوچستان کے اندر یہ جو سیاسی عدم استحکام، حکومتوں کی تبدیلی، پھر کرپشن کے الزامات اور پھر پیسے دے کے اور پیسے لے کے حکومت بدلنے کی چیزیں یہ کیوں ہوتی ہیں، وجوہات کیا ہے آج کے پروگرام میں. اور اب قدوس بزنجو صاحب کی جو حکومت ہے اس کا مستقبل، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے. ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے پھر کہا ہے کہ وہ 20 تاریخ کو لانگ مارچ کی کال دے رہے ہیں اسلام آباد آنے کے لیے. آج لاہور میں جو وکلا کنونشن تھا ان سے بھی انہوں نے خطاب کیا ہے. جو معاشی صورتحال ہے آج پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ قطر میں شروع ہو گئے ہیں. حکومت پر امید ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور انہیں لگ بھگ $1 ارب کی جو رقم ہے وہ آئی ایم ایف سے ملے گی. لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جو ڈالر ہے آج اس نے ڈبل سینچری مکمل کر لی ہے اور بعض جگہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 204 اور 205 روپے میں بھی فروخت ہو رہا تھا. تو یہ صورتحال ہے. کچھ اسٹیپ گورنمنٹ نے اٹھائے ہیں، بعض چیزوں کی جو امپورٹ ہے اس پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، بعض کے اوپر مزید ٹیکسیشن کی جا رہی ہے تاکہ امپورٹ بل کم ہو. لیکن یہ معاشی صورتحال سنبھل نہیں رہی. گزشتہ روز اتحادیوں کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ اگست 2023 تک اپنی مدت پوری کریں گے. یعنی عمران خان کے جو فوری انتخاب کا مطالبہ ہے اسے حکومت نے مسترد کر دیا ہے. اس پہ بھی گفتگو کریں گے. پنجاب کا جو سیاسی بحران ہے وہ شدید گنجلک صورتحال ہے. آج پاکستان تحریک انصاف نے مزید کہا ہے کہ وہ عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں کیونکہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے. تو یہ لگ بھگ 1 مہینے سے زائد کا وقت ہو گیا ہے. پنجاب کے اندر عملی طور پر حکومت نام کی چیز نظر نہیں آتی، نہ کیبنٹ ہے نہ کچھ اور ہے. گورنر بھی عدالت میں ہے، موجودہ جو حکومت ہے پنجاب کی وہ بھی عدالت میں ہے، اپوزیشن بھی عدالت میں ہے اور جو حکومتی مشینری ہے وہ مکمل طور پر مفلوج ہے. تمام چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سابق وفاقی وزیر محترم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मोहतरमा शानदाना गुलजार साहिबा कुछ ही देर में, जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान से भी जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वाले हैं या जो हुकूमत है उनका मौक़िफ़ मालूम कर सके। तो जनरल साहब, आप तो बलूचिस्तान के हवाले से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्टीज भी, फिर बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक भी, अब ये जो मूव हुई है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और इसकी जो सक्सेस है या जो फेलियर है वो क्या नजर आता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक साहब, मेरे लिए भी ये खबर है। एक्चुअली सुबह से मैंने टेलीविजन नहीं देखी है, मुझे पता नहीं था कि इस किस्म की कोई डेवलपमेंट हुई है, लेकिन सिचुएशन पूरे मुल्क में, बलूचिस्तान को छोड़ दीजिए, अफसोसनाक है। ये जो मामलात हैं अदम एतमाद की, चाहे वो जाम साहब के खिलाफ थे या अभी कुद्दूस साहब के खिलाफ आने वाले हैं, इसके बाद कौन साहब आते हैं और वो सरवाइव करते हैं कि नहीं करते हैं, ये वो जमहूरी टाइप की मूव नहीं है। गो के टेक्निकली इसको आप जमहूरी मूव कह सकते हो कि जमहूरी तरीका एक है कि अदम एतमाद लाया जाए, लेकिन ये चीजें इतनी सिंपल नहीं होती हैं, इनके पीछे बेशुमार छुपी हुई चीजें होती है। और ये जो गवर्नमेंट थी बलूचिस्तान में, जाम साहब को जब तक स्टेबिलिटी हासिल थी उसके पीछे लोग थे उसको इस्तेकाम देने वाले, इस्तेकाम उन्होंने दी जितने अरसे के लिए वो चाहिए था। जिस वक्त वो सहारे हट गए, वो बेसाखियां हट गए, जाम साहब इतने कमजोर हुए जैसे कि कोई बगैर बेसाखियों वाला लंगड़ा आदमी होता है। और यही हाल कुद्दूस साहब का है। और हमें तो कोई फर्क नजर नहीं आया निजाम साहब में और कुद्दूस में, मुझे किसी किस्म का कोई फर्क नजर नहीं आया। बलूचिस्तान की बदकिस्मती है, पाकिस्तान की बदकिस्मती है। मैं बलूचिस्तान की वजह से पाकिस्तान की बदकिस्मती नहीं कहूंगा, मैं तो पंजाब के सिलसिले में भी पाकिस्तान की, पंजाब हमारा सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान पंजाब है। वहां पर भी क्या हालत है, क्या हो रहा है, क्या होता रहा, गवर्नर के साथ क्या हुआ, दूसरे गवर्नर साहब आए तो वो क्या करते रहे, तारीख अदम एतमाद के साथ क्या हुआ, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वाली कहानी कैसे आई, और एक दूसरे को मारना धाड़ना ये करना, कभी वो बाजू बांधे हुए स्पीकर साहब मूव करते हैं, थोड़ी देर के बाद वो मूव हो जाता है उनका। और अभी इस महीने से ऊपर हुआ है, कैबिनेट नहीं है, हुकूमत कौन चला रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, डॉलर 2004 से ऊपर चला गया। मेरे ख्याल में इस मुल्क की मुस्तकबिल के सोचने वाले लोग जो कोई भी है, जो भी मुतालिका लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक अदारों से है या जुडिशरी से है या किसी से है, मेरे ख्याल में इस वक्त मुल्क में बलूचिस्तान का मामला इतना कोई सीरियस मामला नहीं है, इतना बड़ा मामला नहीं है। ये है ये अपना इनका जो वो क्या कहते हैं म्यूजिकल चेयर वाली कहानी है, ये चलता रहेगा। लेकिन इस वक्त जहाँ जिस चीज की जरूरत है वो मुल्क के बारे में सोचने की जरूरत है। ये वो टाइम है जहाँ पर तमाम स्टेक होल्डर्स, मुल्क से मुतालिक हम सारे वफादार हैं, कोई गद्दार नहीं है, कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, चाहे उनका ताल्लुक अपोजिशन से हो या उनका ताल्लुक गवर्नमेंट से हो। आज ये भी पता नहीं चल रहा है कि अपोजिशन कौन है, अपोजिशन आया इमरान खान है या मौजूदा हुकूमत है, क्या नहीं है, पीडीएम और फलान। इन तमाम लोगों को, हमारे जुडिशरी को, हमारे जितने भी सोचने वाले लोग हैं, जो चाहे उनका ताल्लुक मीडिया से है या किसी और फील्ड से है, इस वक्त ये लम्हे फिक्रिया है उनके लिए, मिल बैठने की जरूरत है और ये फैसला करने की जरूरत है क्या ये हालात इसी तरीके से चल सकते हैं, चलाए जाने चाहिए, इनके नतीजे क्या होंगे, कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये जो उन्होंने जो इसके ऊपर उन्होंने प्राइसेस के ऊपर जो उन्होंने मॉरेटोरियम रखा था इसने गवर्नमेंट, पुराने गवर्नमेंट ने, उनसे भी पूछना चाहिए कि वो गिरधर सिंह उनके पास क्या थी जब उन्होंने कहा कि जून तक हम किस कीमतों को कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे। वो मुहब्बे वतन लोग हैं, उनसे पूछा जाए वो राज, और ये राज शहबाज शरीफ साहब उसके ऊपर अमल करें जिससे बचा जा सकता था 700 बिलियन रुपीस के नुकसान से। आई एम श्योर इमरान खान साहब के पास या उनके वजीर खजाना तरीन साहब के पास
कुछ तो होगा जब उन्होंने ये फैसला किया था। अब इनको मुसीबत पड़ी हुई है कि 200 या 300 पे फी लीटर पेट्रोल की कीमत करे या न करे, उसका असर क्या पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में उनके पास कोई जरूर गिद्दड़ सिंगी होगी, कुछ उन्होंने सोचा होगा, और वो मुल्की मफाद में और मुल्की वफादारी इस बात का तकाजा करती है कि वो उस चीज को शेयर करे, और मुल्क से वफा इस बात का भी तकाजा करती है तमाम स्टेक होल्डर से कि ये टाइम आ गया है मिल बैठने का और एक मुल्की लेवल का फैसला करने का कि मुल्क को किस तरीके से चलाए। ये जमहूरी तरीका, इसका तो मामला खत्म कर दे सुप्रीम कोर्ट ने कल कि जी तारीख अदम एतमाद में अगर कोई आदमी वोट देगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। तारीख अदम एतमाद की कहानी हो गई खत्म। वोट नहीं देगा, किसी पार्टी से ताल्लुक होगा, और जो भी हुकूमत बनती है वो किसी पार्टी की हुकूमत होती है। जब उनका वोट ही काउंट नहीं होगा तो तारीख एतमाद वाली कहानी भी खत्म हो गई। मरकज में नहीं लाया जा सकता है, कुछ नहीं की जा सकती इसके बारे में। तो अभी मामलात को कैसे चलाया जाएगा? क्या वही छोड़ा जाएगा जो आदमी इस वक्त बैठा हुआ है वजीर आजम है, या कल कोई आदमी आएगा वजीर आजम बनेगा, उसको मामलात इस तरीके से दिए जाएंगे कि वो जो मर्जी है करे? और अब मर्जी ये करना बिल्कुल ठीक है अगर मुल्की मफाद में है, अवाम के फायदे में है, अवाम को रिलीफ मिल सकता है, वो मुसीबतों से बाहर आ सकते हैं। अभी तो हमारे मुल्क में तो बड़ा तमाशा लग गया है। शाहजादा बीबी इसके बारे में हम श्योर फिर शुरू करेंगे वही गाना कि आलू टमाटर गाली बन गया है, मजाक बन गया है कि यानी महंगाई तो कोई बात ही नहीं है मुल्क के अंदर। इसको तो अवाम के साथ, गरीब के साथ ये मजाक किया जा रहा है, तो समझ नहीं आती है। शानदाना साहब, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ मेरा ये जिस बात का। दो बातें, एक तो जन साहब ने कहा कि ये बलूचिस्तान को वो म्यूजिकल चेयर का गेम समझते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कि एक ने जाना दूसरे ने आना, आम आदमी भी कुछ नहीं, और जो क्योस है मुल्क के अंदर ये एक कंसल्टेटिव प्रोसेस की जरूरत है, कंसेंसस की जरूरत है, वरना मुल्क के हालात बहुत खराब है। कोई एक अकेला नहीं चला सकता, चाहे आप हो चाहे मौजूदा हुकूमत हो, कोई भी हो। शुक्रिया तारिफ साहब और अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। देखिए बहुत सारी बातें की जनरल साहब ने भी, आपने भी। बलूचिस्तान पे मैं आऊंगी आखिर में, क्योंकि बेचारा बलूचिस्तान मैं कह सकती हूँ वो पाकिस्तान का अफ्रीका रहा है। हर किसी ने इसको एक्सप्लॉइट किया है, किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैं खुद बलूच नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बलूचिस्तान के लिए काम करती रही हूँ पिछले 3.5 साल, तो वहाँ जो हालात हैं वहाँ पे, चाहे जाम कमाल साहब को हटाया गया या बजिंजर साहब को हटाया गया, ये एक मजाक है बलूचिस्तान के लोगों के साथ, क्योंकि उनकी जो एक्चुअल हालत है, क्वेटा से जरा बाहर निकले कैंटोनमेंट से और आपको पता चले कि बलूचिस्तान किस तरह से सक रहा है, बिलक रहा है। उन्हीं की गैस सारे पाकिस्तान में घूमती है, उन्हीं के सारे अखराजात, उन्हीं के सारे रिसोर्सेज, मिनरल्स, सोना पूरे पाकिस्तान को संभाल रहा होता है। मैं आपकी बात शानदाना साहब इंटरप्ट करूं कि आप बल्कि बलूचिस्तान को विजिट करके आके आपने इमरान खान साहब को ये कहा था कि बलूचिस्तान को सीरियस लें वरना हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। कोई इस तरह की बात भी हुई थी किसी मीटिंग में? जी बिल्कुल, पार्लिमानी पार्टी मीटिंग थे, उसमें हमारे एलाइज भी सारे थे, बीएपी के, उसमें हमारे साथ शाहजहान बुख्ती साहब भी थे, उसमें हमारे साथ जो गवादर के एमिनेट इंडिपेंडेंट जो हमसे चले गए भूटानी साहब, सारे लोग बैठे हुए थे, साहब फरीद साहब। और मैंने काफी तल्ख बातें की थी क्योंकि वहाँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बैठा हुआ था, तकरीबन 200-250 बंदा था। मैंने खुल की बात की थी बलूचिस्तान के बारे में पीएम से, एंड उन्होंने शुक्र है सुन लिया, क्योंकि देखिए मैं काबीना के मेंबर तो हूँ नहीं, मैं बहुत छोटा सा कारकुन हूँ पीटीआई का, लेकिन मैंने जो रिपोर्ट थी वो हमने कोर कमांडर, एक ग्रुप किया था नेशनल असेंबली का असद कैसर साहब की क़यादत में, तो हमने वो कोर कमांडर सदर्न कमांड को, उनका जो फ्रंटियर कोर के, सॉरी वहाँ पे जो एफसी के हैं वहाँ, और यहाँ प्राइम मिनिस्टर को, स्पीकर को, सबको जो रिलेटेड लोग थे, हमारे साथ सादिक खान साहब भी गए हुए थे, जो वो अरबाब शहजाद साहब थे जो प्राइम मिनिस्टर के एसपीएम थे, और सादिक खान साहब अफगानिस्तान के हमारे स्पेशल वो हैं, स्पेशल टूर अफगानिस्तान। सो ये बहुत जबरदस्त इवेंट, और हमने देखा, और जो तकलीफ हमने चमन में देखी, जो हमने बॉर्डर पे देखी, वो एक एक चीज रिपोर्ट हो चुकी थी। उसकी सेंसिटिविटीज मैंने नहीं रिपोर्ट की पब्लिक में, लेकिन ये बात थी कि बलूचिस्तान खुदा ना खास्ता दुश्मन बहुत जल्दी उसको हमसे जुदा करना चाहता है, जिस तरह बांग्लादेश को जुदा किया। तो बांग्लादेश को बलूचिस्तान को खास खसूसी अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग हैं बहुत गैरतमंद, लेकिन वो तकलीफ में है, और गैरतमंद आदमी और औरत यूजुअली कंप्लेन नहीं करता, वो चुप करके पीछे हट जाते हैं और हालात खुद ही फिर बदल जाते हैं। तो ये बात हुई थी। अच्छा, अब मैं आती हूँ एक और बात पे, जो जनरल साहब की मैं इज्जत करती हूँ, मेरे सीनियर रह चुके हैं, लेकिन एक चीज से मैं डिसएग्री करूंगी
ٹھیک ہے پنجاب کا سائز بہت بڑا ہے پاکستان میں، بے شک پنجاب از دا بریڈ باسکٹ آف پاکستان، لیکن جس طرح بلوچستان تمام پاکستان کے ہمارے نیشنل ریسورسز کو پورا کرتا ہے، گیس دیتا ہے، کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ بلوچستان از پاکستان. وہ صرف یہ کہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں وہاں سے زیادہ آتی ہیں، فوج میں پنجاب سے زیادہ لوگ بھرتی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پنجاب از پاکستان. اور میں نے اپنی ایک اسپیچ میں کہا تھا بجٹ میں پچھلے سال کے ریزن ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، میرے جیسے لوگ کے پی سے لوگ، کہ ہم نے قربانیاں دے کے ہم تھک گئے ہیں. کبھی ضرب الاسد، ضرب رد الفساد، اتنے سارے ضربے تھی اور سب ہمارا صوبہ یا بلوچستان اس کو جھیلتا تھا. یہاں تک کہ پنجاب اور سندھ میں جو اس وقت حکومتیں تھیں انہوں نے بارڈرز بند کرنا شروع کر دی تھے آئی ڈی پیز، انٹرنل جو ڈسپلیس پرسنز ہوتے ہیں ان کے لیے. بہت سخت دیکھا ان دونوں صوبوں نے، لیکن باقی صوبوں سے اتنی سپورٹ نہیں ملی جتنا ہم سوچتے تھے، کیونکہ یہ جنگ پاکستان کی تھی، بلوچستان اور کے پی کی نہیں تھی. تیسری بات، میں نے یہ بات کہی تھی، اب میں کیونکہ آپ نے انسٹیبلٹی کی ہم نے ایک اوور آل بات کی ہے، بلوچستان کی، پنجاب اسمبلی کی، پاکستان میں قیمتوں کی، پیٹرولیم کی، آئی ایم ایف کی، بہت بڑی باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. تو میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گی کہ میری ایک، میں نام نہیں لے سکتی، سینیٹر صاحب ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہیں، ہمارے اچھے دوست ہیں، پاکستان کے خیر خواہ ہیں. ان کو میں نے کہا تھا تقریباً 22-23 مارچ کو، میں نے کہا جو مجھے نظر آ رہا آتا ہے وہ تباہی ہے، کیونکہ مجھے سیاست سے زیادہ اکانومی یا ٹریڈ کی سمجھ ہے. تو میں کہا آپ سوچیں ایک ملک، کوئی بھی ملک ہو، وہاں پہ آپ ایک ملک میں ایک سال میں 3 دفعہ پرائم منسٹر بدلیں گے. آپ پہلے خان کو ہٹا کے شہباز شریف کو لانا چاہ رہے ہیں، پھر شہباز شریف کے 3-4 مہینے جتنا وہ کر سکیں گے ان کو کرا کے پھر آپ کیسے لے کے آئیں گے، وہ 3 مہینے رہے گا، پھر الیکشن ہوں گے، اور اگر پیسفل الیکشن ہوئے پھر اس کے بعد ایک نیا پی ایم آئے گا جو اس کو مہینہ تو لگے گا 1.5 اپنی کابینہ بنانے میں. تو یعنی ایک سال میں آپ نے ایک ملک میں 3 پرائم منسٹرز بدلے. اور یہ میں ہر ٹی وی شو پہ کہتی ہوں ریپیٹیٹیولی کہ اس میں آپ کی سگنلنگ اتنی بری جاتی ہے دنیا کو. کیوں کر کوئی پاکستان میں انویسٹ کرے گا، کیوں ڈالر سستا ہوگا، کیوں انویسٹمنٹ آئے گی، کیوں آپ کے تیل سستا ملے گا، کھانا سستا ملے گا، کیونکہ دنیا کا آپ سے باور اٹھ گیا ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی 9 مہینے کی انسٹیبلٹی ہے اس ملک میں، یہ چیزیں تو ہونی تھی، تباہی تو ہونی تھی وی او این سی سے. انٹیلیجنٹ کام یہ ہوتا کہ جی ووٹ اپنا کانفیڈنس ہے، اسی دن اسمبلیاں توڑیں، الیکشن کی طرف جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. پھر جو بھی جیت کے آتا، اس وقت اتنی مہنگائی تھی، پرابلی پی ٹی آئی کو اتنا سپورٹ بھی نہ ملتا عوام سے. لیکن جس طرح سے یہ جس بدنیتی سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، جس میں جو انٹرنیشنل کیریکٹرز انوالو تھے، جو کنسپیریسی تھی، جو مداخلت تھی، مطلب بچوں والی باتیں تھی. پہلے خط نہیں تھا، پھر خط تھا، اس میں جھوٹ تھا، پھر جب جھوٹ نہیں تھا وہ سچ تھا، پھر جب وہ سچ تھا تو وہ مداخلت تھی، سازش نہیں تھی. چلو اگر وہ سازش نما مداخلت تھی، لیکن یہ تو آتے رہتے ہیں ایسے خط، اگر ایسے خط آتے رہتے ہیں تو پھر عدالت نے خان صاحب کو کیوں روکا پھر اس کو مت ریویل کریں. سو یہ اتنی بڑی کھچڑی بن گئی. اگر صاف ستھرا جو بھی رسپانسبل ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کہہ دیتے کہ وی ڈونٹ ٹرسٹ عمران خان، اس کو ہٹاؤ، صاف الیکشن کرو، چاہے وہ ہارے وہ جیتے، ٹھیک، پھر سچویشن ڈفرنٹ ہوتی. نہ تیل نہ کے مہنگا ہونا تھا. اور دوسرا جو عمران خان نے جاتے جاتے روس کا وزٹ کیا، تمام اداروں کی، یعنی آپ کا پوائنٹ یہ کہ ٹائملی ڈیسیجن ہو جاتا ہے اسی وقت، اگر یہ فیصلہ ہو جاتا کہ جی الیکشن، تو یہ اتنی کمپلیکس سچویشن جو ہے نہ ہوتی. میں حافظ صاحب کا پوائنٹ بھی لے لوں. حافظ صاحب، جن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو بلوچستان میں اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ میوزیکل چیئر والا معاملہ ہے، لوگوں کے حالات بہت برے ہیں، ایک کنسلٹیٹو پروسیس نہیں کیا تو ہم تباہی کی طرف چلے جائیں گے. شاندانہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جس وقت گورنمنٹ ٹپل ہوئی تھی، اگر اسی وقت الیکشن اناؤنس ہو جاتا تو شاید یہ پیچیدگی نہ ہوتی. بس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے لوگ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا چکر نہ چلاتے تو اتنے برے حالات نہیں ہوتے، اتنی انسرٹینٹی نہیں ہوتی. خان صاحب کو پورا وقت ملنا چاہیے تھا. جو ان کی پرفارمنس تھی اگر وہ خراب تھی تو اس پہ عوام احتجاج کرتے، پولیٹیکل پارٹیز احتجاج کرتی. احتجاج کرنے کا تو ہر ایک کا حق ہے نا. ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں ایک آئینی طریقے سے چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بھی ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے جب الیکٹیبل کی بولیاں نہیں لگتی، جب لوگوں کی وفاداریاں خریدنے کے لیے ان کو بڑے بڑے سنہرے خواب نہیں دکھائے جاتے. کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے ماضی میں چھانگا مانگا آباد ہوتے ہوئے، ایک رات میں جو ہے پوری اسمبلیاں بدلتے ہوئے، اور وہی سب کچھ دہرایا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں اپنی پارٹی کے لوگوں کی وفاداریاں بکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ظاہر ایم کیو ایم ہر اس موقع کے اوپر اپنے ریٹ لگاتی ہے، اس نے بھی اپنے ریٹ لگا دیے. اور اس کے نتیجے میں حاصل کیا ہوا؟ اس وقت ملک کی صورتحال کتنی ابتر ہو گئی ہے. لہٰذا دیکھیں کنسلٹیشن تو کرنی پڑے گی، اور میں بلوچ صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو بھی
अब देखें, ज़ाहिर है उनकी पार्टी है, उनकी एक वेव अगर बनी हुई है, तो अगर वो ये समझ रहे हैं कि ये वेव चलती रहेगी, तो जाहिर है कि इसका कोई एंड तो होना चाहिए ना, किसी जगह पे रुकना चाहिए मामला। कंसल्टेशन होनी चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर को बुलाइए, साथ बैठें और रास्ता निकालें। इस तरीके से भी मसला हल नहीं होगा कि बातचीत हो ही नहीं सकती, बात करनी पड़ेगी। बात तो देखें आपको इंटरिम गवर्नमेंट भी करनी पड़ेगी ना। ठीक, कैसे बनेगी इंटरिम गवर्नमेंट? हमारे बगैर जो बनाएंगे मानेंगे। जब आप कह रहे हैं कि आपके बगैर नहीं बनेगी, तो फिर आप अपना बगैर इसी तरह से रखें ना। तो इसी तरह जो है वो देखें, गवर्नमेंट कहती है मगर आप आए असेंबली के अंदर बैठे, हम तैयार हैं बात करने के लिए। वो कहते हैं हम तो आते नहीं है असेंबली। अब देखें, इस तरह से नहीं होगा ना, इस तरह नहीं होगा अभी तो। अब और ये बात सही है कि मतलब ये बात मीडिया पे कहना है एक अजीब सी बात, लेकिन कितने भी न्यूट्रल हो जाए एस्टेब्लिशमेंट, उसका अपना एक रोल है। या तो देखें वो रोल जो है ना आज से तय हो जाए कि बिल्कुल भी रोल नहीं होगा आइंदा, और पहले भी नहीं रहा। वो तो कह रहे हैं हमें तय कर लेने दें, आप लोग नहीं तय कर लेंगे, बार बार उनको लेकर। नहीं, हम नहीं लाना चाहते, हम तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहते। लेकिन अब इस जगह पे हम आकर खड़े हुए हैं, तो सवालात तो इसके अंदर भी मौजूद है ना कि मतलब पीडीएम में कहां से ये ताकत आ गई। ये पीडी क्या जरदारी साहब की इतनी ताकत है क्या? मौलाना साहब या शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त ब्लू आइड बॉय के मुकाबले में इतनी ताकत रखते थे कि सब कुछ हो? तो ये मसला तो इस कौम के जिम्मे किसी और वजह से हुआ है ना। तो अब इस मसले से निकालें भी और इसमें कोई रास्ता इख्तियार करें। लेकिन मैं कतन ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसी चीज हो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खराब करे। आप बैठकर वे आउट निकालें और ये मसला हल हो सकता है। ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज नईमुर रहमान साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, जनरल कादिर बलोच साहब मेरे मेहमान हैं। जनरल साहब, कैसे वे आउट निकलेगा इस मामले का? देखिए, मैं चूंकि जिन इदारों की तरफ इशारा किया गया, मेरा ताल्लुक उन्हीं से है। मेरी पहचान सिपाहियाना जिंदगी है, मैं फौज का हिस्सा रहा हूँ। देखिए, चीजों को आपको समझने की जरूरत है। ये जो पास्ट गवर्नमेंट था हमारे इमरान खान साहब की, और उसके बारे में इल्जामात ये थे कि जब इलेक्शन का प्रोसेस हुआ उसके अंदर मुदाखलत थी, अदारों के ऊपर इल्जाम था कि उनकी मुदाखलत थी और उनके मदद की वजह से इनको वो मेजॉरिटी मिली जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने हुकूमत बनाया। मेजॉरिटी जो कुछ भी किसी ने किया या नहीं किया, हकीकत यह है कि पीटीआई को वो एज अ सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं मिली जिसके बुनियाद के ऊपर वो हुकूमत बना सकते। उनके लिए सपोर्ट दाएं बाएं से ढूंढा गया। कहते ये हैं वो सपोर्ट जो उनको मुहैया की गई, वो चाहे एमक्यूएम की तरफ से था या बीएपी की तरफ से था या वो जीडीए की तरफ से था या वो बीएनपी की तरफ से था, जहां कहीं से आई वो सारे मिला के उन्होंने वो मेजॉरिटी दिला दी इमरान खान साहब को, जिन्होंने अपनी हुकूमत बनाई और 3.25 साल तक हुकूमत चलाए। कहा यह जाता है कि वो मामलात इतने बिगड़ गए कि जब ये महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, जब ये सिचुएशन पैदा हुई तो कुछ भी नहीं हुआ। वदारों ने कोई गलत काम नहीं किया। सॉरी, मैं आसिफ साहब मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि भाई ये गलती थी, अगर कोई था या नहीं था, जो कुछ भी था, तुम लोग अपने डेमोक्रेटिक कार्रवाई को डेमोक्रेटिक तरीके से चलाओ। ये जो बेसाखियां हट गई और वो फिर लोग जो ना अपने अपने घोंसलों में वापस जाना उन्होंने शुरू किया, हुकूमत गिर गई। इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई, डेमोक्रेटिक तरीके से हुकूमत हटाई गई। कल के जजमेंट के बाद वो तरीका भी खत्म हो गया है हमेशा के लिए। और इसके बाद एक बबल आया, वो इस वक्त बिल्कुल वो आया, वो एक बात की गई कि जी साजिश हुई। एक सुपर पावर एक साजिश करता है और फिर मुल्क का वजीर कानून आता है और वो कहता है कि आर्टिकल 5 के तहत हर आदमी के ऊपर ये लाजम है कि मुल्क से वफादार हो। तो वफादारी इस बात को डिमांड करता है कि किसी साजिश का हिस्सा न बने, तो फौरन 174 आदमियों की वफादारी को क्वेश्चन एबल बनाते हैं, एक सुपर पावर को साजिशी बनाते हैं। साजिशी अमीर गरीब के खिलाफ नहीं बनाता है, ताकतवर जो ना कमजोर के खिलाफ नहीं करता है। वो तो डंके की चोट पे अपनी कार्रवाई करते हैं। उन्होंने जो कहा डंके की चोट पे कहा, लेकिन हमारे लोग
अभी कम से कम ये तो एक मेरे ख्याल में शानदारा बीवी से बहुत पढ़ी लिखी खातून है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आर्गूमेंट कर रही थी। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि यही बात जो उन्होंने पार्लिमानी कमेटी में की, एक और बात वहां पर ये कहे कि ये जो 174 आदमियों को आपने गद्दार करार दिया, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के साथ कार्रवाई की जाए। इनको तो बिल्कुल ओपनली एक जजमेंट आई, बाकायदा वो जजमेंट के मुताबिक उनकी राय को रद्द कर दिया गया। तो इसका मकसद है कि वजीर कानून साबिका हमारी और हमारी साबिका हुकूमत इस बात पे कन्विंस है कि ये एक गद्दारी की कार्रवाई की गई और उसके पीछे कम से कम खुल्लम खुला 174 आदमी थे, इनके खिलाफ कार्रवाई तो की जाए। पाकिस्तानी अवाम को इस तरह बेवकूफी में न डाला जाए, बच्चियों को, खवातीन को अभी एक जज्बाती कैफियत में डाला गया है। सडनली हर चीज तब्दील हो गई है। शानदाना साहब, ये जो जन साहब ने बात की है, पहले तो एक हाफिज साहब ने कहा कि कंसल्टेटिव प्रोसेस जरूरी है, बैठना तो पड़ेगा, तो इमरान खान साहब को कौन बिठाएगा? एक सिंपल सा सवाल है हाफिज साहब कि इमरान खान को बिठाने की जरूरत क्या है? वो तो नालायक थे, वो तो नाअहल थे, उनको तो उन्होंने तो इकोनॉमी को जला दिया, बर्बाद कर दिया। ये माशाल्लाह 17 पार्टीज हैं, एक से एक अलामा वहां बैठा हुआ है। एक अलामा ने तो बल्कि आज कोशिश की है, श्री डॉक्टर जुबैर हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट प्लानिंग कमीशन के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि उनको ऑर्डर मिला कि पीटीआई की हुकूमत की जो आखिरी साल की मईशत थी डिस्पाइट कोविड, वो ग्रोथ 5.9% की काइंडली किताबों में चेंज करके 4% कर दी। तो उसने कहा मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, मैं इस्तीफा देता हूँ। तो हाल तो ये कि डर से लोगों का हाल बहुत बुरा है। मैं कहती हूँ कि अगर खान साहब इतना ही इररेलेवेंट था तो क्यों डरते उसके जलसों से? करने, वो 2 साल जलसे करते रहेंगे सारे पाकिस्तान में। उनके हाथ में और है क्या? अदालतें उनके हाथ में नहीं है, इलेक्शन उनके हाथ में नहीं है, कोई चीज उनके हाथ में नहीं है, तो करते रहे। व्हाई डू यू नीड हिम इन कंसल्टेशंस? बस खुद करते रहे। सारे यूएनसी का भी फैसला किया, यहाँ पे वालिद को बिठा दिया सेंटर में, बेटे को उधर बिठा दिया सूबे में, फादर इन लॉ को जो है मियां साहब की बेटी के जो ससुर हैं इसहाक डार साहब, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। बस एक 5 और लगा देती फैमिली के, बस पूरा पाकिस्तान पंजाब बन जाएगा। शॉर्टली मैंने ब्रेक लेना है शानदार साहब, जो उन्होंने कहा 174 लोगों को आपने क्यों नहीं गद्दार करके और आपने प्रोसिक्यूट किया उनको? मैं बताती हूँ, मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर पार्टी में अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में। हमें 1 पार्टी रूल नहीं चाहिए इस मुल्क में। नून लीग में भी डिसेंट लोग हैं, पीपल्स पार्टी भी हैं, और जो हमारे कुछ जानने वाले हैं। रिसेंटली एक ट्वीट भी आई थी सरदार जाफर लगारी की, मेरी खुद मालूमात है कि जब इन पार्टी मेंबर्स को पता चला कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस से आया था, एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, अमेरिका ने किसी को ऑर्डर नहीं दिया, ना यूरोप ने, कि अपने मुल्क को खराब करो। वो तो एक दाना डालते ना, फिर उठाने वाले की मर्जी पे है। तो जब इन लोगों को पता चला ये खुददार एमएनएज, ये खुददार एमपीएज, उनको जब पता चला कि ये हुआ है पाकिस्तान, ये सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हुआ है, आजकल उनके हाथ पैर फूले हुए गुस्से से। ना वो अपनी पार्टी को छोड़ना चाहते कि वो पुराने वर्कर हैं, और ना उनको समझ आ रही कि उनके लिए रन उनको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। ये मैं आपको हल्फन बता सकती हूँ कि पीपल्स पार्टी में, JUIF में भी, और यहाँ पे भी नून लीग में भी ये हो रहा है। और ये जो गद्दारी की बात है ना, गद्दारी प्योर एंड सिंपल उन लोगों ने की है जो पीटीआई छोड़ के गए, जिनके 2 हफ्ते के अंदर 174 लोगों को आप गद्दार नहीं समझ, 174 लोगों को जो उस वक्त की अपोजिशन थी, उन्हें तो आप गद्दार नहीं समझते? देखिए, मेरा उनकी गद्दारी वफादारी का पता क्या है? जिस बंदे को पता था कि अमेरिका का इसमें हाथ है, बिल्कुल वो गद्दार है। जिसको नहीं पता था वो नहीं है। बट ये इतना ग्रे एरिया है, मैं किसी पे लेबल नहीं लगाऊंगी सिवाय अपनी कानून ने जिन लोगों ने ये काम खुल के कहा कि ये गद्दार थे, इनकी राय की कोई अहमियत नहीं है। कहते हैं फवाद चौधरी साहब ने, जन साहब कह रहे हैं कि असेंबली में कहा कि ये गद्दार है, इनकी राय की अहमियत नहीं है। खुल के कहा कि ये गद्दार है, इनकी राय की अहमियत नहीं है। इस बुनियाद के ऊपर शौरी साहब ने रिजेक्ट किया तारीख अदम एतमाद को। जी शानदाना साहब दोबारा। जी नहीं, वो एक डिफरेंट इशू था, वो आर्टिकल 5 का इशू था, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा तक नहीं, जो हमारा गिला था उनसे। वो इशू ये था कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था बिकॉज ऑफ अ कंस्पिरेसी। लेकिन फवाद साहब की जो राय थी वो पार्टी की राय, फवाद साहब की राय पार्टी की राय नहीं थी। फवाद साहब की राय पार्टी की राय नहीं थी, फवाद साहब की अपनी राय। तारिक साहब जी एक सेकंड, मेरी सिर्फ पूरी आखिरी बात सुन ले। बिलावल साहब जो थे, जब आए थे नए हुकूमत में, अक्टूबर नवंबर की बात है, तो वो कहते थे कि PTI हैज बिकम TTIMF। अब IMF के पास कौन दौड़ रहा है?
जोश में, जज्बे में हर बंदे के मुंह से गलत बात निकलती है, और सियासतदानों का तो कोई एंड ही नहीं है, जोश और होश तो होता नहीं है। तो माजरत के साथ बाजी की तो इतनी बातें मैं अगर बोलना शुरू कर दूं तो कुछ रहेगा ही नहीं। पॉइंट ये है कि सब कुछ जो हुआ ये बदनीयती से हुआ। करने जा रहे थे, खान को डिस्टेबलाइज कर दिया, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज, और खान को स्ट्रेंथन कर दिया। ये होता है चमत्कार की, जब बदनीयती से कोई काम करते हैं फिर आपको अल्लाह नहीं बख्शता। चले मैं वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो हाफिज नईमुर रहमान साहब के सामने सिचुएशन रखते हैं कि भाई अब सॉल्यूशन की तरफ अगर बढ़ना है, वो तो कहते हैं कंसल्टेटिव प्रोसेस जरूरी है, कैसे होगा? और अब खान साहब जो अब लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, तो ये मामला ठंडा कैसे होगा? वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल कादिर बलोच साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हाफिज नईमुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, जमात इस्लामी तो बिल्कुल अलग थलग रही है, नो कॉन्फिडेंस वाले जो मूवमेंट थी, ना आप इधर गए ना उधर गए। अब ये जो पहाड़ जैसे मसाइल आ गए, 200 से ऊपर डॉलर, फिर IMF की जो बात शानदाना बीबी करी, आज मुज़ाकरात भी, चीज़ें भी, कोई हल है आपके पास इसका? क्योंकि फौरी इलेक्शन तो आप भी चाहते हैं, मगर आप भी इंतखाबी इस्लाह की बात कर रहे हैं। असल में देखें ना, चीज़ों को अब जब एक सिचुएशन में आप घिर जाते हैं ना, तो किसी भी तरीके से किसी आइसोलेशन में देखेंगे तो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा। अब मेरी बहन शानदाना मैंने तो सारी तकरीबन इनके फेवर की बात की थी, पता नहीं इन्होंने किस बात से मेरी ये मतलब निकाला कि इनके खिलाफ कोई बात है। मैं तो पहले दिन से हमने तो पहले दिन से कह रहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का चक्कर नहीं होना चाहिए, और इमरान खान साहब को तमाम तर इख्तलाफ और एहतजाज के बावजूद 5 साल पूरे करने चाहिए, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। और मतलब कहने को तो आप फिर हर साल में हुकूमत बदलने के लिए एफर्ट्स करना शुरू कर दें। अगर इन हाउस तब्दीली किसी ऐसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का नाम है तो हर साल में आप ये काम शुरू कर देना। फिर आप भी तो महंगाई के खिलाफ धरने मुजाहिरे जमात इस्लामी कर रही थी। देखें, हमारा एक मॉडल आपने देखा, जाहिर है वो एक शहर का मॉडल था। हमने 29 दिन का सिट इन दिया, ठीक है, ना किसी को गाली दी, ना किसी को पत्थर मारा, और 29 दिन की जद्दोजहद के बाद हुकूमत से मुतालबात मनवाए। एक मॉडल ये भी होता है कि आप हुकूमत के ऊपर सियासी दबाव डालें और उनके साथ फिर मुज़ाकरात भी करें और एहतजाज भी करें, सड़कें भी ब्लॉक करें, कोई मसला नहीं है। ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है इसमें फिर हुकूमत इंतजाम करती है। तो हमने एहतजाज भी किया, सड़कों पर धरने भी दिए उसी दौरान, धरने के दौरान, और बिल आखिर फिर उनके साथ बातचीत हुई। कुछ चीजें फिर हमने आगे के लिए डेफर कर दी और बहुत सारी चीजों पर उनसे इत्तेफाक किया और उनके मुंह से बात कहलवा दी। पीपल्स पार्टी ने इस काम को किया। जमात इस्लामी जिसके पास कोई सीट नहीं थी, एक सीट है सिर्फ, और हमने अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए से, जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए से, एक बड़ा मसला है, कराची का मसला बड़ा मसला है, वो हमने हल करवाया। तो एक मॉडल है ना, तो भाई ये तो नहीं होता ना कि बस खत्म कर दो, निकाल दो। तो मैं समझता हूं कि वो गलती कर गए ये, और वो जाहिर है कि अपने आप को काबिल कबूल बनाने के लिए, कि वो समझ रहे थे कि हम जो है वो काबिल कबूल नहीं है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल बनाने के लिए इन्होंने इस वक्त का इंतखाब किया और उस पर अपना पूरा काम किया। वैसे मैं ये समझता हूं कि अब तो हम पहले भी कह रहे थे और अब भी कह रहे हैं कि प्रॉब्लम में तो ये पूरा इत्तेहाद भी है। और इस वक्त जो लोग कहते हैं, आम लोग कहते हैं कि जरदारी साहब ने तो नून लीग को भी फंसा दिया, तो और मौलाना भी इस वक्त जरा वरे वरे ही हैं, तो नून लीग तो बहुत बुरी तरह फंस गई है। लेकिन बहरहाल नून लीग फंसे या कोई भी फंसे, पाकिस्तान को नहीं फंसना चाहिए। बन गई है, अब हमें भी वक्त पूरा कर लेने दें आपके फॉर्मूले। नहीं देखें, जिस तरह से बनी है, तो दूसरी बात है कि चलाएं ना, फिर डॉलर क्यों जा रहा है 200 पे? भाई इतनी बातें कि इन्हीं बातों की वजह से तो आप पीटीआई के खिलाफ बात करते थे ना, तो मैं कोई पीटीआई के हक में थोड़ी कह रहा हूं कुछ। बात यह है कि फिर आपके पास वो कौन सी चीजें थी जिसकी बुनियाद पर आप कह रहे थे कि हुकूमत हमारे हवाले की जाए, तो आप लेकर क्यों नहीं आ रहे उनको? तो आप इसलिए, अच्छा दूसरी जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, देखें लॉन्ग मार्च करना भी उनका हक है और एहतजाज करना और जलसे करना भी उनका हक है, करें, लेकिन जंग भी हो जाती है तो उसके बाद बात ही करनी पड़ती है, ठीक है ना? तो बात तो करनी पड़ेगी। जब आप इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे तो उस वक्त बातचीत करनी पड़ेगी, आपको एक दूसरे की राय माननी पड़ेगी। इत्तेफाक नहीं होगा फिर उसका भी एक प्रोसेस मौजूद है। इलेक्शन कमीशन पे भी अगर एतराज है तो भी बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये कहना कि आप बातचीत नहीं होगी तो क्या इनकलाब, उस वाला का इनकलाब लाना चाहते हैं कि जिसमें सब खत्म हो जाए और जो है वो एक आदमी आपका अपनी हुकूमत का ऐलान कर दे? तो मेरा ख्याल है कि ये तो इमरान खान साहब के पेश नजर नहीं है। तो जब ये पेश नजर नहीं है तो एहतजाज भी कीजिए और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर चीज है वो कीजिए। इसमें सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहरहाल जमात इस्लामी इसीलिए इस चक्कर में नहीं पड़ी थी, और हम बिल्कुल देख रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि इसमें जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म में जो है ना कुछ बहुत। इमरान खान साहब ने वैसे राब्ता किया सिराज साहब से, कोई मुलाकात की भी मामला तय पा रहे हैं कि शायद कोई मुलाकात हो जाए? नहीं, अच्छी बात। देखें
पॉलिटिकल प्रोसेस में मुलाकात करने में क्या है। पीटीआई और जमात इस्लामी का केपीके में 5 साल इत्तेहाद रहा ना, और वो अच्छे नोट पे खत्म हुआ था। मुश्तरकात के ऊपर मुश्तरका जुद्दोजहद भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल सबको अपने अपने कंडक्ट का जायजा भी लेना चाहिए। ये बात, इतनी सारी मोहब्बत की बातें करके मैं कुछ शिकायतें भी तो करूंगा ना। खान साहब ने 3.5 साल में बहरहाल वो नहीं डिलीवर किया जिस तवक्को के साथ वो आए थे, जो उम्मीदें थी। मैं तो कराची के शहरी की हैसियत से बात करता हूँ। चले पाकिस्तान भर में जो लोग शिकायत करेंगे, हमारे शहर को तो आपने कुछ भी नहीं दिया। आपने गलत मर्दमशुमारी एमक्यूएम के साथ मिलकर मंजूर कर ली। आपने पानी का मंसूबा 650 मिलियन गैलन के बजाय 260 मिलियन गैलन कर दिया। आपने जो है वो हमारे कोटा सिस्टम में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इजाफा कर दिया एसआरओ के जरिए। तो हम तो डसे हुए हैं, लेकिन हम आपसे फिर भी ये कहते हैं कि आपके पास अगर ये पॉपुलर वेव है तो आप उसको पाकिस्तान के हर शहर के, बलूचिस्तान के, सिंध के अवाम के हक में इस्तेमाल करें। जब आप पॉजिटिवली जाएंगे तो लोग आपके साथ चलेंगे। शिकवे के बावजूद भी कुर्बत हो सकती है पीटीआई से। भाई किससे बात, पॉलिटिकल प्रोसेस में बातचीत क्यों नहीं हो सकती? ठीक बात, क्यों नहीं हो सकती? जैन साहब, सॉल्यूशन मुझे अगर आप लास्टली बताएं कि अब ये जो क्राइसिस सिचुएशन है, हल क्या है आपकी नजर में? अगर खान साहब बैठने के लिए तैयार नहीं होते और वो कहते हैं नहीं मैं एहतिजाज करूंगा, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, जो उनका रवैया हुकूमत में था कि ये चोर है, डाकू है, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो हल कैसे निकलेगा सर? हल तो माशाअल्लाह, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हाफिज साहब को कि हाफिज ने कराची के मसले हल कर दिए और एहतिजाज का एक तरीका उन्होंने इख्तियार किया, बड़ा जमहूरी तरीका था, बिल्कुल हम उसके सपोर्ट में हैं। उसको मुबारकबाद होना चाहिए कि कराची का मसला कोई मसला नहीं रहा और उन्होंने पीपल्स पार्टी से जो कुछ बनवानी थी बना लिया। आगे मैं मजीद उनसे ही रिक्वेस्ट करूंगा और सराज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे मेरी बड़ी अच्छी बहुत एक इज्जत का रिश्ता है, एक वाकफियत है कि वो मेहरबानी करके हाफिज साहब का ये मॉडल मुल्की लेवल पर भी इसको आजमाएं। पाकिस्तान भी तो उनका है, ये कराची के नहीं है, सिंध भी उनका है उसके मसले हल करने के लिए, और वो आगे आए और कार्रवाई करें। और यही हाफिज साहब और उनकी पार्टी जिस तरीके से वो इशारा कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह इस पोजीशन में भी होंगे कि इमरान खान साहब से वो कुफ्र का जो उन्होंने हिसाब किताब किया हुआ है वो उससे तोड़वाएंगे, उनको आगे करेंगे कि वो हाथ भी मिलाएं। हाथ नहीं मिलाते हैं, मुस्कुरा के अक्रॉस द टेबल बैठे। मुल्क मसले में है और मुल्क के मसलों को हल करने के लिए मिल बैठ के सोचने की जरूरत है। सोल्यूशन चूंकि आपने कहा, तो मैं फिर अपनी ये तमाम सरकास्टिक अपने बातों को एक तरफ रखते हुए यही कहूंगा कि ये वो वक्त है, ये वो लम्हा है जहां पर सबको मिल बैठने की जरूरत है, मिल बैठने की जरूरत। शानदाना बीबी शानदाराना किस्म की अपनी वो आर्गूमेंट दे रही है, लेकिन बहरहाल चूंकि उस मुल्क का मालिक अपने आप को समझते हैं, पब्लिक ओपिनियन का अपने आप को मालिक समझते हैं कि पब्लिक ओपिनियन भी उनके साथ है, मुल्क उनके साथ है, तो उनका एक तरफ बैठना और ये कह देना बच्चों की तरह नाराज हो गए कि जी हमें निकाल दिया, अभी तुम मसला हल करो। ये मुल्क है, ये बच्चों का खेल नहीं है, एक घर का मसला नहीं है, एक फैमिली का मसला नहीं है। हाफिज साहब भी ये कह रहे हैं कि जंग के बाद भी बैठना पड़ेगा। एक शॉर्टली सर, कि क्या इदारे लाताल्लुक रह सकते हैं? आपको कोई ऐसी स्टेज नजर आ रही है कि उनको बिठाने की जरूरत पड़े सब लोगों को? अदारों का जहां तक ताल्लुक है, अदारे देखें, मैं आपको बात बताता हूं कि अगर खुदा न खास्ता मामलात हाथ से निकल जाएंगे, पाकिस्तान की सालमियत खतरे में पड़ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा सिचुएशन बन जाएगा जहां पर भाई भाई का गला काटे या लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर दे, खतरा गारत हो जाए, अफरा तफरी हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। उनकी आईनी जिम्मेदारी है कि उस मामलात को ठीक करें। उनका जहां तक इस बात का ताल्लुक है, ला ताल्लुक होने का, इलेक्शन से 100% मैं आपको गारंटी देता हूं, पाकिस्तान आर्मी अपने कमांडर इन चीफ के, चीफ आर्मी स्टाफ के नीचे यूनाइटेड है और उन्होंने क्लियरली कहा है, इस बात के ऊपर आपको यकीन करना चाहिए। DGISPR में ने जो कुछ कहा, उनका मुल्क की मामलात के इलेक्शन से मुतालिक, हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक, उसको आगे पीछे करने का जहां तक ताल्लुक है, उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा और नहीं होगा और ना वो करेंगे। शानदाना साहबा, शॉर्टली मैडम, सोल्यूशन आपकी नजर में? जी बिल्कुल, तारिक साहब, एक्चुअली हाफिज साहब भी बैठे हुए हैं जमात इस्लामी से कि चले गए? जी बैठे हुए। अच्छा,
एक्चुअली हुआ ये कि मैं आपको मुखातिब कर रही थी क्योंकि आप भी हाफिज है ना, मैं आपको मुखातिब कर रही हूँ, तो सॉरी माय नहीं, वो पश्तो में जी कहते हैं अक्सर, एक ट्रांसलेशन है पश्तो की कि बेटी बेटी सुनो तुम लेकिन सुना बहू को रही हो, और आपकी जो ऑडियंस हमारे यहाँ भी यही है, अभी शो के तवज्जुह से जो सुन रहे हैं मैं उनको सुना रही हूँ यहाँ पे, ना मैं जेनरल साहब से डिसएग्री कर सकती हूँ ना आपसे, आप मेरे सीनियर्स है। मैं एक आखिरी पॉइंट कहूंगी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जनरल साहब के, वाकई वो हमें गुस्सा साइड पे रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि मुझे गुस्सा इमरान खान के हटाने पे या अपने इस्तीफे पे है, हमारे तो सर पे छत है, खान साहब का भी घर है, पानी है, खाना है। इन लोगों के साथ जो पिछले 5 हफ्ते में हुआ है, मैं तो गांव से हूँ जी, जब गांव जाती हूँ लोगों से बात करती हूँ, यू कांट इमेजिन कि जो गुस्से और गम की लहर उनमें दौड़ी है। और पता है वो क्या कहते हैं, आज वो ट्विटर पे भी एक ट्रेंड बन गया है कि खान यही लंगर खाने चला रहा था इस बजट में, यही पनाहगाहें थी, यही एहसास प्रोग्राम था, यही कामयाब जवान था, कामयाब किसान था, यही बलोचिस्तान पैकेज भी दिया था, एक्सफाटा का भी दिया था, बिजली के बिल भी थे, तेल का बिल भी था, गल्ला भी था, इसी बजट में सब कुछ हो रहा था और सब्सिडी भी इसमें हो रही थी। तो अगर आपसे जो गिला शिकवा हमारा है कि अगर आप हमसे बेहतर काम नहीं कर सकते थे तो कौम से या जिससे भी आपने ये बातें कही, जो क्लेम्स आपने किए कि आप इस मुल्क को ठीक करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, स्टेबिलिटी तो थी, महंगाई थी, बट उसके अलावा क्या मसला था। फैसलाबाद में बीवी मोहतरमा शहीद की मैयत के बाद, पहली दफा उनकी शहादत के बाद फैसलाबाद की तमाम टेक्सटाइल मिले फुल कैपेसिटी पे काम कर रही थी, कराची में भी यही हो रहा था। ये इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो लोग आपको, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती, महीने 1.5 महीने में परफॉर्मेंस अच्छी होती तो लोग आपको भूल जाते। इनकी परफॉर्मेंस ने गुस्सा और बढ़ा दिया है। परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं है ना, पाकिस्तान को दिवालिये पे ले आए हैं। परफॉर्मेंस ये होती कि चलें आप स्टेबिलिटी रख लें, कि जो खान कर रहा है आप उसको बरकरार रखते, ये तो नोज डाइव हो गया है ना। ठीक हाफिज साहब, लास्ट जी कंक्लूडिंग आपका रिमार्क्स, सिराज साहब को कहें कि कोई सालिसी करें। जनरल साहब कह रहे हैं जी आप बड़े, इमरान खान साहब को भी टेबल की दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए बिठाएं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि सालिसी उस वक्त होती है जब कोई सालिस माने, तो इसके लिए बुनियादी शर्त यही होती है कि जो 2 फरीक अगर हैं तो वो किसी को सालिस माने तो वो सालिसी करेगा ना, तो वरना तो वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होगा। तो वो खामख में ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे, बिठाना आपके बस की बात भी नहीं। देखें खान साहब भी देखें एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं और उस प्रोसेस से उनको गुजरने दीजिए, ठीक है। मेरी बहन ने कहा है ना, मैं अब इनसे क्या अब इख्तलाफ करूं, अच्छे हालात नहीं थे। शानदाना साहिबा, यानी तकरीबन 3 महीने पहले जो आवाम थे ना, हम ज़ाहिर लोगों से मिलते हैं ना, रहते हैं। पीपल्स पार्टी जो आपकी जितनी इस वक्त सोशल मीडिया पे कैंपेन है और कैंपेनर्स हैं, ज़ाहिर है जो नौजवान भी काम कर रहे हैं, आपके जो भी फंड्स भी हैं, तो वो आपका दिफा करने के काबिल नहीं रहे थे, मतलब नहीं आ रहे थे सामने। मैं आपको बताऊं, खान साहब ने एक मरतबा ये ऐलान किया कि सोशल मीडिया पर मुझे डिफेंड किया जाए, हमारी गवर्नमेंट को डिफेंड किया जाए, हमारे वजीर बयानात दें। आपको याद है ना, तो ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि हर चीज बिल्कुल ठीक जा रही थी, अच्छी नहीं जा रही थी हुकूमत जाने से और फायदा हो गया। जी जी, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि महंगाई ठीक ठाक थी। मुझसे भी ऑन अ लाइटर नोट, हमारे गांव में एक खातून है, बहुत तकड़ी स्मगलर है, वो कहती जी रिज़्क मिलता नहीं है तो मैं स्मगलिंग करूंगी। तो उसने मुझे बताया, कहती मैम कि मेरे मतलब ये गैर कानूनी करियर के बावजूद मैं अंडा और टमाटर नहीं खरीद सकती कि आपके घर पे फेंकूं। मुझे पता है, मैं भी गांव में रहती हूँ, अवाम में रहती हूँ कि क्या हालात थे, लेकिन अगर आप अवाम से, ये मैं ये कहती हूँ कि जब जो लोग वो VONC कर रहे थे खान साहब के खिलाफ, तो वो सिर्फ एक सर्वे करा रहे थे 15-20 शहरों में कि महंगाई के अलावा अगर खान साहब को हटा दिया जाए तो आपकी क्या राय होगी। जी जी, 4 साल में आप कुछ नहीं कर सके और 1 महीने की कार्रवाई के लिए यहाँ पर ढंके नहीं, मेरा ख्याल है कि आप जो है ना, अब कौम के सामने सारी चीजें सामने आ जाएंगी। साहब आपसे ईमानदारी की जी उम्मीद की जाती है कि आप सही राय देंगे। मैं तो जो मेरी राय है वो मैं आपके सामने दे रहा हूँ। आप 4.25 साल वाली कार्रवाई को एक तरफ रख के 1 महीने वाली, फिर एक और बात है, 35 साल और 3.5 साल का भी कंपैरिजन होना चाहिए, फिर 74 साल में जो कुछ होता रहा है उसका भी होना चाहिए। तो बहरहाल हिसाब किताब तो सबका होना चाहिए। सिर्फ जमात इस्लामी बचेगी, जमात इस्लामी ही बचेगी। जमात इस्लामी मैं कहता हूँ मेरा आइडियल पार्टी है, लेकिन ये भी ना भूले कि जब भी कोई फौजी हुकूमत आई तो सबसे पहले जमात इस्लामी से मिली।
जो कि डेमोक्रेटिक प्रेस दायबा हुआ, हकीकतों के बारे में मेरे ख्याल में बेहतर है इस पे हम न जाएं तो ज्यादा बेहतर है। इस वक्त मुल्क को जो मसाइल दरपेश है उसके बारे में सोचें, छोड़ दें इन इल्जामात की कार्रवाई को, छोड़ दें इनको। मेरे ख्याल में जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हाफिज नईमुर रहमान साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।